Both the time, Honorable Supreme Court has recommended for a single examination in all India level. Primary first, at first, this examination was conducted by CBSE. Subsequently, the new agency, National Testing Authority, has been assigned to conduct this examination. This is a continuous process from the 2010 onward. This debate is on. Those who have decided to conduct that examination in those days, today, due to political reason, they are putting fingers. Today, there is categorical answer from government. Due to Supreme Court's guidance and the instruction, single examination, All India pattern examination is very successfully on. And regarding Tamil Nadu, sir, Sir, question number 16. Sir. No, how can Same question. Sir. एनके प्रेमचंद जी, क्या आप प्रश्न नहीं करना? एनके प्रेमचंदन जी, Sir, प्लीज. sir, the basic issue before us is the credibility of the competitive examinations has already been lost. So 24 lakhs of students have appeared for the NEET UG examination this time. The corruption has begins from the date of registration. Now this time the registration date has been extended, and for correcting the Aadhaar updation, that has also been extended, and the leakage of paper has also happened in Patna. And after all these things, now the future of the students is in big danger, and they are very much apprehensive. They are all approaching us as the people's representative. So the point is, the CBI investigation is going on. So far, only one case is registered and one affair is registered. CBI investigation is going on, and a committee has also been constituted to look into it. So our case is whether, since it is a matter which is concerning the people at large, I think that this is the right forum by which this matter has to be discussed. So my question is, one question is regarding the centers of excellence like AIMS, JIGMA, AFC, whether a separate competitive test will be conducted, and in order to examine in detail whether a joint parliamentary committee be constituted so as to investigate into this matter. That is a specific question I am asking, sir. Honorable Speaker, sir, as I said in my previous reply, there is a background why this pattern of NEET examination is conducted. With utmost respect to this House, I am again politely saying, due to different views, Honorable Supreme Court has categorically twice said this centralized examination pattern has to be there. Regarding some anomalies, very government has nothing to hide. We have put all the facts in front of Supreme Court. Very right now, Supreme Court is hearing that case. It will be proper to just wait and watch what Supreme Court is giving instruction, and this House is open to any kind of discussion. अखिलेश यादव जी, 1 मिनट में सबका जवाब दूंगा आज. चलो बैठो. अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं. देश के बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर आपने मुझे पूछने का समय दिया है. अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी. अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि पूछें. अध्यक्ष महोदय, मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब, कैसे, किस संस्था को बनाया गया है. पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे. लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं. मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहाँ हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहाँ 2,000-2,500 बच्चे पास हो गए हैं. सरकारी सीटें 30,000 हैं. कई सेंटर में 2000 से ज़्यादा पास हो गए. कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज़्यादा सबसे ज़्यादा नंबर हैं. और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी
तो अध्यक्ष महोदय, जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात? सुझाव देकर इस सिस्टम को और बेहतर कर सकते हैं, ये होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप से सदन नहीं है। आप बेहतर सिस्टम डेवलप करो। और कभी भी सारे एग्जामिनरों पर सवाल उठाना सदन के लिए उचित नहीं है। ये सदन इसके लिए है भी नहीं प्लेटफॉर्म। नो क्वेश्चन नंबर 3 श्री डी प्रसाद राव, प्रश्नकाल में सबको सवाल उठाने दिया और एक बार सवाल उठाने के बाद दोबारा नहीं उठाने दिया जाता। संसद नियम प्रक्रियाओं से चलती है और नियम प्रक्रियाओं से मैंने चलाया। श्री डी प्रसाद राव, प्रश्न नंबर 3 9। मैंने सदन की चिंता सरकार को भी बता दी है और आप सबको बता दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अवसर देने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं प्रसाद राव हूँ, चित्तौड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आंध्र प्रदेश से हूँ। मेरे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू गारू ने विशेष वित्तीय सहायता केंद्र से मांग की है और ताकि जो आंध्र प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए उन्होंने प्रश्न संख्या 3 है, पहले बोलो प्रश्न संख्या 3। क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न संख्या 3। कोई दिक्कत नहीं, सब सीधे पहली बार आप प्रश्न संख्या 3 है, पहले बोलो प्रश्न संख्या 3। क्वेश्चन नंबर 3। माननीय मंत्री जी, कोई दिक्कत नहीं, सब सीधे पहली बार आए। अब माननीय प्रश्न पूछे, प्लीज सदस्य। Thank you very much for allowing me to speak this very important question, Honorable Speaker. This is Prasad Rao from Chittoor constituency, Andhra Pradesh. Our beloved Honorable CM Chandrababu Naidu Garu has requested. और अनूप का रुख कर लेते हैं। अनूप लगातार हमारे साथ जुड़े। अनूप, एक बार फिर वही स्थिति, नीट पर एक बार फिर हंगामे की कोशिश। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ने मामले को शांत कराने की पूरी कोशिश की अपनी ओर से। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आसार जताया जा रहा था वही हो रहा है। नीट पेपर लीक को लेकर सुबह से ही ये कहा जा रहा था कि आज विपक्ष इस पर सवाल उठा सकता है। हुआ भी वही। आपने राहुल गांधी को सुना, अखिलेश यादव को सुना, दूसरे तमाम जो सांसद विपक्षी दल के वो नीट मामले पर ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जो मंत्री है, शिक्षा मंत्री, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसके पुख्ता सबूत नहीं है, पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता कि ये पेपर लीक हुआ था। हालांकि इसे लेकर जब भी धर्मेंद्र प्रधान जवाब देने की कोशिश कर रहे थे, हंगामा हो रहा था। आपने सुना होगा विपक्ष की ओर से बहुत सारे ऐसे नारेबाजी आवाज सामने आ रही थी जिससे लग रहा था कि शायद वो जवाब से असंतुष्ट है। लेकिन यहां आपने ये भी देखा, ओम बिड़ला जो है अध्यक्ष हैं, उन्होंने समझाने की कोशिश की कि भविष्य में बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो, उनके परीक्षाएं गलत ना हो, क्योंकि सिर्फ नीट पेपर लीक का मामला नहीं है। अगर हम हर परीक्षा लीक की बात करें तो हर प्रदेश में अलग अलग परीक्षाएं होती हैं, सरकारें अलग अलग हैं। ऐसे में अगर हम सब पर सवाल उठाते हैं तो कहीं ना कहीं भविष्य खराब होगा बच्चों का और इसका असर जो है वैश्विक स्तर पर भी गलत होगा। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष मानने को तैयार नहीं है, लगातार वो विरोधाभास करता नजर आ रहा है। और ये सदन में आज जो कार्रवाई चल रही है, अनामिका आप देख रहे हैं, बिल्कुल विपक्ष अड़ा हुआ है नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा कराने को। धर्मेंद्र प्रधान हर बात का जवाब दे रहे हैं, जो सांसद सवाल उठा रहे हैं उनका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष के तेवर को देखकर ऐसा लग रहा है कि इन जवाब से विपक्ष कहीं भी संतुष्ट नहीं है और आने वाले वक्त में जो चीजें, जो मुद्दे उठाए जाएंगे उसे लेकर रहे कि विपक्ष सवाल उठा रहा है। और राहुल गांधी ने भी नीट पेपर लीक को लेकर क्या कहा है, पहले वो सुनवा देते हैं, फिर आपके पास वापस लौटेंगे। चलिए, थोड़ी देर में आपको वो बयान हम सुनवाएंगे जो राहुल गांधी ने पेपर लीक को लेकर दिया है। सवाल खड़े किए हैं सदन के अंदर और इसको लेकर जोरदार नारेबाजी, हंगामा होता दिखाई दिया है। मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है लेकिन लग रहा है कि अभी भी हंगामे के पूरे आसार हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा है, सुनवाते हैं पहले। The issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that
चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से इसको निंदा करता हूँ। बाकी रहा, मैं सर आपके सामने आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूँ सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसके उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की? और लगातार पेपर लीक मामले पर विपक्ष का हंगामा, सीधे सदन से कार्रवाई दिखाएंगे आपको। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।